جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، جو کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اور آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں نعتیہ مقابلہ. یعنی مقابلہ نعت خوانی ہے. مختلف اسکولوں کے بچے ہیں جو کہ اپنی اپنی جو ان کی صلاحیت ہے اس حساب سے وہ نعت خوانی کے ہنر دکھائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی ایک ایسی کاوش ہے یہ، جس میں بچوں کو مختلف جو ہے وہ کمپٹیشنز اور چیزیں دی جاتی ہیں. بہرحال ناظرین، ہم سب سے پہلے تو اپنے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کوتھم. آپ نے نام سنا ہوگا، جسے ہم کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کراچی ہے. کوتھم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب صابر احمد صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں جی، اللہ کا کرم. ناظرین، اس کے علاوہ آج کے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے اور ایڈمنسٹریٹر ہیں مائی اسکول کے، سیف اللہ ابڑو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف اللہ ابڑو صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں، جزاک اللہ. اور ناظرین، ہمارے آج کے جو تیسرے مہمان ہیں وہ تو آپ روزانہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے جناب فیضان قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ ججز بھی موجود ہیں، اور جو میرے پہلے آج کے جج ہیں وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے ان کو ہماری اسی ٹرانسمیشن میں آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہے. یعنی جو حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں، نعت پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم شکیل بھائی. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی الحمدللہ. اور ناظرین، آج کی جو ہماری دوسری جو جج ہیں ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گا آپ کو. حنا عمران نعت خواں ہیں جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. تو یہ ہمارے ججز ہو گئے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے صابر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. سر، پہلے بتائیے گا کوتھم جو ہے کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد ہم الائنس کی جانب آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور الائنس کا پرائیویٹ اسکول کا. کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ بیسیکلی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر ایجوکیشن، ایک معیاری ایجوکیشن یہاں پاکستان میں فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. 15 کیمپسز ہیں اراؤنڈ پاکستان، اور 2 کیمپسز ہمارے یہاں کراچی میں. میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد عموماً پرابلم یہ ہوتی ہے بچوں کو کہ وہ کون سی فیلڈس کے اندر جائیں. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری فیلڈس موجود ہیں، جس میں کلنری آرٹس ہے، کوکنگ ہے، پیٹسٹری ہے، بیکنگ ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی ہوٹل مینجمنٹ ہے، ٹریول اینڈ ٹورزم ہے، انٹرنیشنل ٹریول مینجمنٹ ہے، انٹرنیشنل ہوٹل آپریشنس ہیں، ایئرپورٹ آپریشنس ہیں. اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں کہ جو آپ کر کے لوکل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. اور یہ سارے انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ کورسز ہیں. کیا ایکریڈیٹڈ کورسز ہیں؟ یعنی مانے جاتے ہیں یا ہر جگہ آپ کی ڈگری جو ہے مانی جاتی ہے؟ ورلڈ وائڈ ایکریڈیٹڈ ہے. جیسے ٹریول کے کورسز سارے آیاٹا سے اپرووڈ ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل ٹکٹنگ وغیرہ اور سب ایوری تھنگ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ، اس کے ڈپلوماز ہیں ہمارے پاس، اور وہ کنیکٹڈ ہیں آیاٹا کے ساتھ. اور اس کے سارے ایگزام جو ہے نا وہ آیٹا لیتی ہے، ہم نہیں لیتے. ہم پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آن لائن ایگزامس ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ انٹرنیشنلی اپرووڈ ہیں اور ہر جگہ دنیا میں ایکسیپٹیبل ہیں. صحیح بات. اچھا، اور ہوٹل مینجمنٹ میں کوکنگ بھی آ جاتی ہے یا صرف؟ جی. اچھا، دیکھیں ہوٹل یا ریسٹورینٹ یا جس انڈسٹری کے نہیں، ایک تو شیف ہوتا ہے نا، شیف اور ہوٹل مینجمنٹ کے کورس میں تو فرق ہوتا ہوگا نا. ہوٹل مینیجر جو بنتا ہے، دیکھیں ایک ہے فرنٹ آف دی ہاؤس، ایک ہے بیک آف دی ہاؤس. جی. کسی بھی ہوٹل کے 2 حصے ہوتے ہیں. بیک آف دی ہاؤس میں سارا کلنری کا ہوتا ہے، جس میں کوکنگ ہے، جس میں ڈیولپمنٹ آف فوڈ ہے، جس میں مینجمنٹ آف فوڈ ہے، جس میں سروس آف فوڈ ہے. یہ سارا بیک آف دی ہاؤس ہے. فرنٹ آف دی ہاؤس میں آپ کی ساری ہاؤس کیپنگ ہے، آپ کے جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ فرنٹ ڈیسک ہے، ریسپشن ہے. تو یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں. ایک کہلاتا ہے ہوٹل مینجمنٹ، ایک کہلاتا ہے کلنری آرٹس. کلنری آرٹس میں پیچھے کوکنگ وغیرہ سب آ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا، دونوں شعبوں کی ایجوکیشن بالکل دونوں الگ الگ لائن، ڈفرینٹ ایجوکیشن، اور دونوں ہاسپٹیلٹی کا پارٹ ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا پارٹ. اور زیادہ اچھی ویل پیڈ کون سی وہ ہے؟
देखिए दोनों ही बहुत अच्छी वेल पेड है। मैं आपको बताऊं इस कराची के अंदर भी हमारे अपने यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी ले रहे अच्छा, हैं earn कुकिंग कर के रहे हैं। अंदर, शेफ जो है हमारे। कुकिंग में? जी जी, 2-2 2.5 लाख रुपए, और इस वक्त शेफ मिल नहीं रहे। मैं आपको बताऊं अच्छे शेफ, अच्छा। अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिनका टेस्ट अच्छा है, जिनका जायका अच्छा है, ये अवेलेबल नहीं होते अमूमन। जहाँ होते हैं तो दूसरा उसको ले जाने की हमेशा फौरन ले जाने, इसलिए कि क्लाइंट्स जो आते हैं किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, वो आते ही शेफ की वजह से। दोनों चीज़ें देखें, अब तो वो इंटरनेशनली भी और लोकली भी होता है कि रेसिपीज़ को लॉक कर दिया जाता है। जो अच्छी रेसिपीज़ होती है ना, उनको लॉक करते हैं, तो उसके फिर शेफ़ के आने जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन जहाँ पर रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर तो लाजमन शेफ़ के हाथ के टेस्ट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। शेफ़ चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। हाँ, यानी वो शेफ के हाथ से ही है। भाई आप अपने घर के अंदर अपनी वालदा के हाथ से पका हुआ खाना खा लें, अपनी सही अहलिया बात के हाथ का पका हुआ खाना खा लें, अपनी बहन के हाथ का, आपको तीनों का सबका टेस्ट डिफरेंट होगा टेस्ट। तीनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। अच्छा, पार्ट टाइम अगर कोई वैसे ही शौकिया करना चाहे, पढ़ना चाहे तो हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं, पढ़ भी सकता है। और असल में हमारे कोर्सेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कुकिंग का कोई क्लास लेना चाहे कि चलो अच्छा है, मैं जरा हाँ, एक स्किल है ना सर, फन है। ऐसी जबरदस्त स्किल आपको है। शौक हो तो इसमें तो आदमी को मजीद सीख भी ले तो फिर क्या बात देखिए है। हम ये कहते हैं कि डिग्री विद स्किल्स, यानी आज की दुनिया के अंदर स्किल्स की कदर है, चाहे कोई भी स्किल। बहुत महंगा शौक है क्या? यानी अगर कोई लेना चाहे क्लासेस? ऑन एन एवरेज देखे ना, बहुत महंगा तो मैं नहीं कहूँगा, ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये से 17,000 16,000 रुपये पर मंथ फीस है। और उसमें आपको बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता, सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम ही देते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी आप हर चीज देते हैं। पकने के बाद खाना कहाँ जाता है? इंग्रेडिएंट्स तो आ गए। खाना भी खुद खाते हैं बच्चे, अच्छा, खुद ही पकाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही कंज्यूम पकाते करते हैं, हैं। प्लेटें साफ करके जाते हैं। अच्छा, ये तो नहीं होता कि खाना पकने के बाद आप कहते हैं भाई 1 मिनट पक गया, ये जरा भिजवा देना अलग से? नहीं, वो हाँ? देखें अगर बच्चे अपना पका हुआ हमारे किचन में यही होता है। अपना खाना खाएंगे नहीं, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या बनाया, हाँ हाँ हाँ। क्या बनाया, टेस्ट क्या था, उसकी प्रेजेंटेशन क्या थी, तो दे कंज्यूम, उसी से उनको अंदाजा होता है कि आप किस तरह परफेक्शन की तरफ जा रहे इसका हैं। मतलब अगर आपके ऑफिस में मैं आऊँ तो बेहतरीन रोजा ना हो, यानी रमजान ना हो, तो बेहतरीन खाने को कुछ भी मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं जो उस वक्त प्रैक्टिकल चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और तरह तरह का जितने स्टूडेंट होंगे उन सबका अलग अलग। हाँ, लेकिन हम अवॉइड करते हैं, हमने अपने स्टाफ को भी और अपने आप को भी पाबंद किया हुआ है हमने, कि इसलिए कि अगर हम सब खाना शुरू कर देंगे इस तरह ना, मेहमानों के लिए तो हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, आप आएंगे आप हमारे मेहमान होंगे, लेकिन अगर हम खाना शुरू कर दें तो 10 साल हो गए, मेरा ख्याल है मेरा वजन 300 किलो तो हो जाना चाहिए अब तक। बिल्कुल सही। ठीक है साहब, मेरे साहब सही इसलिए फरमा अपने रहे हैं। आप को भी पाबंद किया हुआ है कि हम लोग खाना नहीं है आपने, मतलब खाते हैं, हाँ। उस टेस्ट अंदाज से जरूर मसलन करके चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे टिप एक चेक करना होता है, हाँ, हाँ, उसको हाँ। टेस्ट करना टिप होता तो है। हमारे यहाँ कहते हैं किसी और ही चीज को कहते हैं, जो टिप वेटर देने को वाली दी जाती नहीं, है। हाँ। टिप ऑफ टेस्ट कहलाती है ये। अच्छा, ये टिप ऑफ टेस्ट है, वो टिप ऑफ वेटर है। हाँ, अच्छा, जो पैसों में वो दी जाती है। पैसे वेटर चले लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा, देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट के कोर्सेज हैं, हाँ। जो बच्चे मैट्रिक करते हैं ना, वो बोर्ड से अप्रूव्ड नहीं है। सर, मैं तो शौक ही अपने लिए पूछ रहा था। आप कि तो अगर कह रहे हैं, आपसे लेकिन करीब जाहिर है, हम- पब्लिक तो बहुत हमारे सारी- ऑफिस से करीब है। हाँ। कभी आदमी चाहे कि चलो एक थोड़ा बहुत आता है तो मुझे आप आएंगे, पकाना, सामने ही तो है और आपके। थोड़ा सा मैं खुद आपसे थोड़ा सा सीख जाऊंगा तो आइए। एक स्किल हो जाएगी। संडे वनडे का भी दिल चाहता है कि You are खुद भी welcome, आदमी अपने हाथ से ही पकाए। लेकिन पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंटर जो है ना, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट करें कलनरी आर्ट्स के अंदर, जो इक्विवेलेंट टू इंटर बेहतरीन बोर्ड है। से अप्रूव है। अच्छा, 2 साल का कोर्स है और इंटर हो जाएगा। इंटर भी हो जाए जी, बोर्ड से मैट्रिक पास बच्चे मैट्रिक जो पास आए, इंटर इंटर कलर करें, कलनरी आर्ट, उसके बाद बैचलर्स भी कर सकते हैं, वो जबरदस्त। बीबीए वगैरह में भी दाखिला ले सकते सब हैं। जिसमें चाहे ले हाँ सकते हाँ हाँ। जबरदस्त। तो कलनरी भी आ गई, स्किल भी आ गई, और आपने इंटर भी हो गया। इंटर भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सैफुल्लाह अबड़ू साहब, आपसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। माई स्कूल के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तालीमी मेयार को किस तरह से एक स्टैंडर्ड बरकरार रखा जाता है, ये बताइए। डॉक्टर साहब, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका मेट्रो वन का, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध का दूसरी बार मुझे मौका फराहम किया गया इस प्लेटफॉर्म से बात करने का। देखिए, जो आपने कहा कि स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे, उसके 2 पार्ट हैं। मैं बहुत अरसे से इस फील्ड के साथ इंगेज हूँ, 93 से टीचिंग के हवाले से मैं मुंसलिक हूँ। उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तो ये है कि जो मीनिंगफुल टीचिंग और लर्निंग होती है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, और जिसको हम उर्दू में इल्म नाफ़े भी कह सकते हैं, जिसका कभी सर जिक्र भी कर रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे थे कि मैं अपने लिए ही जो है उसमें कुछ लर्निंग करना चाह रहा हूँ। वो जो इल्म नाफ़े है उसको इम्प्रूव करने में अलायंस जो है वो हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है।
अच्छा। जिसका एक पार्ट ये आपका प्रोग्राम फनून लतीफ़ा जो है, नहीं, फ़नून लतीफ़ा नहीं, मैं मतलब उस इल्म की बात कर रहा हूँ जिससे कि वाकई स्टूडेंट्स को कोई नफ़ा हो, नफ़ा हो। कोई फ़ायदा हो। अच्छा, मैं समझ गया, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, मैं या ये कि स्किल्स, ऐसी स्किल्स जिससे कि आगे वो कुछ अर्न कर सके। नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए असल में मेरा ख्याल इल्म नाफे से मुराद ये है कि नॉलेज बेस्ड हो, उससे नॉलेज भी डेवलप हो और तरबियत भी हो, तरबियत भी हो। अच्छा, एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ जो है उसको मुआशी लिहाज से मैं नहीं देख रहा हूँ, इकोनॉमिकली नहीं देख रहा हूँ कि इससे क्या अर्निंग होगी। मैं ये भी देख रहा हूँ फ़ायदे का इल्म जो है वो लेना चाहिए जी, कि इस सोसाइटी को फेस करना है उन्होंने। इस सोसाइटी में अगर उनको कोई किसी भी क्राइसिस में से गुजरना पड़ता है तो गुजरना कैसे है। मतलब हम तो नॉर्मली हम सब ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी सिचुएशन बने तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और उसी रिएक्शन की वजह से ही ज़्यादातर हम सूरत हाल जो है वो अपनी ख़राब कर देते हैं, अपने लिए जो क्राइसिस हैं वो हम बढ़ा देते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा इल्म नाफे, क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म को इल्म नाफे कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे आए हुए अभी माशाल्लाह ये पार्टिसिपेट भी करेंगे, ये यहाँ आके सिर्फ ये नहीं सीख रहे हैं कि नात ख़्वानी क्या होती है, ये भी देख रहे हैं साथ में कि ये किस तरह से प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और किस तरह से उसके प्रोग्राम अमली ज़िंदगी में बड़ा इनके फ़ायदेमंद रहेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत सा ये इसको तो शायद ये घर जाके कम डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि वहाँ हो क्या कुछ रहा था। वो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल से ज्वाइन होने का ये बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा वरना लग रहा था कि शायद हम थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं। हालांकि इससे पहले हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड रहे हैं आप? एफिलिएटेड रहे हैं, जो कि टीचर्स को ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रिज है ना कि लेकिन ये आप स्टूडेंट्स को जिस तरह ये ट्रेन कर रहे हैं उस तरह आपको अच्छा लग रहा है कि इल्म नाफे से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, नफ़ा हासिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फैज़ान कुरैशी साहब क्या कहते हैं सर, कैसी जा रही है आपकी तैयारियाँ इस ये जो मुकाबले करवाते हैं, और किस कदर कामयाब समझ रहे हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध को? अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी की निशानी तो ये होती है कि एक आपने पिछला इवेंट करा था, ठीक है, उसी तसलसल को हमने बरकरार रखा, और जिस दिन हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी और जिस टाइम मतलब कि हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करा, जिसकी मीटिंग कंडक्ट करी, तो तकरीबन 72 पार्टिसिपेट एट द टाइम हमारे हो चुके थे। तो ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की कामयाबी भी थी। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने कल जो जुमला अदा किया था कि हम तैसर टाउन हो, गुलशन इकबाल हो या नॉर्थ नाज़ाबाद हो, तमाम के तमाम तलबा और तालबात को बराबर मौके दे रहे हैं। इसकी तरीके से जो इसकी तैयारी के हवाले से अगर से हम बात करें तो जीती जागती मिसाल यहाँ पर मोहतरम मतलब के अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की पूरी कोर कमेटी के लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से आप हमें बतौर मेहमान यहाँ पे मदऊ कर रहे हैं, हम यहाँ पे बतौर मेज़बान भी आते हैं। जो हमारे मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं या मुख्तलिफ इंतज़ामात होते हैं, उनको देखने के लिए हमारे तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद होते हैं। मीन्स के सबसे बुनियादी चीज़ हम किरदार साजी पे ज़ोर दे रहे हैं, सिर्फ किरदार गुफ्तार के गाजी नहीं बना रहे, किरदार के गाजी भी बनाना करें। और अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध इसको दरहकीकत अपना सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी निजात का ज़रिया समझती है। अगर से हम प्रॉपर तरीके से कोई भी काम को अहमियत दें, तो एक रोज़ा होता है कि सपोज़ करें हमने रोज़ा रखा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी और दीगर अपने मतलब के जो इबादत उनको करा, लेकिन अगर से मैं एक बच्चे को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, सुरजानी से मैंने बच्चे को यहाँ पर लाके खड़ा, उस टाइम पे उसके माँ बाप के दिल के क्या मतलब इनके जज्बात होंगे, क्या जज्बात होंगे। इसी तरीके से उनके तमाम के तमाम जिस इलाके से वो आ रहे हैं, इलाके के कितने लोग उनको देख के खुश हो रहे होंगे, इसी तरीके से उनके असतज़ा कराम देख के, तो हम समझते हैं कि ये भी हमारे लिए एक इबादत है, जो जिस तरीके से बेशक बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। साबिर साहब भी मौजूद हैं, सैफुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ फैज़ान भी मौजूद हैं। लेकिन आज यहाँ एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा, उसके बाद इनामात भी दिए जाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का, और हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, साबिर अहमद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कोथम के। इसके अलावा हमारे साथ सैफुल्लाह अबड़ू साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं माई स्कूल के और अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध में। इसके अलावा फैज़ान कुरैशी हैं, प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध। नाज़रीन, इस वक्त हम अब नातख़्वानी का जो मुकाबला है उसका आगाज़ करना चाहेंगे। जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब शकील मदनी साहब और नातख़्वां हिना इमरान साहिबा। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अपनी आज की जो हमारी
جو طالبات ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں نعتیہ مقابلے میں. میری پہلی جو مہمان ہیں رمشا، جن کا تعلق مائی اسکول سے ہے. میں دعوت دینا چاہوں گا. رمشا آئیے، تشریف لائیے بیٹا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. رمشا ہمارے ساتھ ہیں. جی مائک اوپر کر لیجیے گا بیٹا تھوڑا سا. جی بیٹا تشریف رکھیے. یہ تھیں ہمارے ساتھ رمشا عبد الخالق، مائی اسکول سے ان کا تعلق. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا انابیہ فرحان کو، جو کہ دار ارقم اسکول بلاک ٹی ہے وہاں سے ہیں. آئیے، دار ارقم اسکول بلاک ٹی سے ہیں انابیہ فرحان. آئیے بیٹا. اچھا مناجات پیش کی تھی انہوں نے. اب جی نیچے کر لیجیے بیٹا مائک. ہاں آئے، شاباش شاباش. جی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے بیٹا بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. انابیہ فرحان ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا نعتیہ مقابلہ آج جو پیش کیا جا رہا ہے. 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب تک یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر چکی ہیں، رمشا عبد الخالق اور انابیہ فرحان. اب میں دعوت دینا چاہوں گا مناہرہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور جن کا تعلق جو ہے نا نیو سینچری اسکولنگ سسٹم سے ہے، اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مناہرہ جی اوپر کر لیجیے بیٹا. اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. غم کے اندھیروں نے یوں
दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी भी बात कोई रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा तशरीफ रखिए। नाज़रीन, ये जो नातिया मुकाबला है, तीनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं इन्होंने अपने अपने कलाम जो हैं ये पेश किए, और अब हमारे जो जजेस हैं शकील मदनी साहब और हिना इमरान साहिबा, सर क्या कहते हैं, आप में इत्तेफाक हो गया है? इत्तेफाक है? बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक से फैसला किया गया है? बिल्कुल। अच्छा, क्या फैसला है? थर्ड नंबर पे पहले मुझे बताइए कौन आ रहा है? मुनाहिरा साहिबा हैं, मुनाहिरा जो अभी पढ़ के गई हैं, जी, जी। वो आ रही तीसरी हैं। पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है। नात कंपटीशन है सर, ये माइक निकाल लीजिएगा जी, माइक एक सेकंड आप जी, आपकी जेब में है, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। मुनाहिरा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनाहिरा बहुत बहुत मुबारक हो, सुपर पावर। बेटा इधर थोड़ा और पीछे आइए सर, थोड़ा सा उस तरफ हो जाएगा आप, उस तरफ जी, फिर इधर आइए। ये मुनाहिरा को दिया जा रहा है सुपर पावर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी, और साथ साथ सर ये इनको शील्ड भी दें आप, और फिर इनका सर्टिफिकेट भी है मुनाहिरा का। ये है मुनाहिरा सहर नाम है आपका, ये ले मुनाहिरा सहर, ये आपका सर्टिफिकेट। ये बैठे, तशरीफ रखें जी, ठीक है जी। अब बताइए सेकंड नंबर पे, दूसरी पोजीशन हासिल की है रिमशा साहिबा ने। रिमशा जो सबसे पहले जो बच्ची जी, आई थी, बहुत प्यारी सी बच्ची, रिमशा आ जाइए भाई, दूसरी पोजीशन आपकी है, आ जाइए। रमशा बहुत बहुत आपको मुबारक हो, ये आपको दिया जा रहा है। रमशा माई स्कूल से ताल्लुक़ है, तो आप तो डायरेक्टर माई स्कूल के, ठीक है, चले माशाल्लाह, ये ले जी, जाइए बेटा तशरीफ रखिए। अब सॉरी मैं आपको उठा के देता हूँ, पहले नंबर पे ये लीजिएगा, ठीक है, तस्वीर खींच ली जी। चले जी, पहले नंबर पे आई हैं अनाबिया। अनाबिया आ जाइए बेटा। अनाबिया फरहान जो हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से पेश किया। ये आपके गिफ्ट हैम्पर है बेटा, साथ साथ ये जो है ना शील्ड है, और ये सर्टिफिकेट, ठीक ठीक, ओके, ठीक है, तशरीफ रखें। और अब ये गिफ्ट चेस की जानिब से जो है, ये साबिर साहब को, साबिर साहब ये आपको गिफ्ट दिया जा रहा है जी, और ये सैफुल्लाह साहब को गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है सर, तशरीफ रखें। नाज़रीन, यहाँ हमारा ये जो मुकाबला है और ये सेगमेंट जो है ये अपने अख्ताम पर पहुँचता है। इल्म आगाही, साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, सैफुल्लाह आपड़ो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फैज़ान कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, हमारे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, शकील मदनी और हिना इमरान हमारे साथ मौजूद थी। अलीम कुरैशी साहब की सरबराही में सारा काम हो रहा होता है। बहरहाल यहाँ हम इस सेगमेंट का अख्ताम करते हैं। कुछ वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन सेगमेंट में, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान अल करीम।